Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. In this video we will discuss about the second part of the mathematical tools which is required to understand the concepts of the physics, and it is very useful in which in first lecture we have discussed about the differentiation, okay, and in second part and in this video we will discuss about the integration, and integration is the just opposite procedure to find out the differentiation of any function, okay, and differentiation means the difference of any function with respect to another variable, okay, and here the meaning of the integration is nothing but the summation of any function, okay, in a given interval of any variable, okay. So I will try to explain very carefully and okay, so come on the board. Integration okay, suppose we have a function like that, and this is the graph between the variable x and any function f, okay. Suppose here the value of x is x and this is the x-axis, and corresponding to this the value of, suppose this is y-axis, okay, here is the value of y is equal to fx, and we increase a small amount of this x, suppose here, and we consider the value of function fx in this interval is constant, okay, because this interval is very small, okay, because it is nothing but is dx, okay. Then the area covered by this region, in this region, is nothing but fx into dx. Then the total area from x1 to x2 can be given by this side fx dx, and it is denoted by I. This is known as integration of any continuous function with respect to x, okay. And the physical meaning of the integration is nothing but is the summation, okay, that is the integration of any function is used for the summation of any continuous function.
ओके, ऑफ एनी कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? एंड a special type of the integration is also definite integration. Suppose we want to find out the integration or summation of this function from x1 to x2, or then this will be defined as limit from x1 to lower limit, and this is upper limit of fx dx. This is upper limit and this is lower limit. Okay, and the meaning of this limit is this. First of all, we find out the area from here to here and minus the area from here to here. That is, this will be equals to, if the integration of this function is suppose capital F, this is equal to capital X. Okay, then this will be fx1 minus fx2, sorry, fx2 माइनस fx1. ओके, देखिए जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है एकीकृत करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना. तो हम जो इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा होगा जब स्टैटिस्टिकल्स की बात की जाती है तो उसमें आपने एवरेज वैल्यू फाइंड की होगी, समेशन ऑफ एन एक्स, इस तरीके से कुछ पढ़ा होगा, समेशन ऑफ एक्स. तो वहाँ पर जो हम समेशन यूज़ करते हैं वो डिस्क्रीट डाटा के लिए यूज़ किया जाता है. बट यहाँ पर हम कंटिन्यूस फंक्शन की जब बात करते हैं, उनसे जब समेशन कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए इंटीग्रेशन को यूज़ किया जाता है. ठीक है, इंटीग्रेशन को आप काफ़ी डिटेल में मैथमेटिक्स में स्टडी करेंगे. यहाँ पर फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसे हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल्स में, नेक्स्ट टॉपिक्स में. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन मीन्स होता है समेशन ऑफ एनी कंटिन्यूस फंक्शन. तो यहाँ इस कंटिन्यूस फंक्शन एफ का हमने क्या किया, समेशन, हम टोटल ओवरऑल वैल्यू इस इंटरवल से इस इंटरवल तक क्या करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पर जो अपर लिमिट ये है इसे अपर लिमिट बोलते हैं, इसे जो लोअर बाउंड्री है इसे हम x1 को लोअर लिमिट बोलते हैं. और इसे जिस फॉर्मूले की हेल्प से इसका आंसर आता है वो इंटीग्रेशन एफ एक्स, सपोज तो वहाँ पर एक्स की जगह इन वैल्यूज को पुट किया जाता है. पहले आपको अपर लिमिट पुट करनी होती है, दूसरी आपको फिर लोअर लिमिट पुट करनी होती है माइनस साइन के साथ. साथ में एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब यदि आप डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल के केस में आपका ये सिचुएशन होगी. लेकिन यदि आप डेफिनेट इंटीग्रल नहीं करते हैं तो जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई कॉन्स्टेंट यूज़ करना होगा. ठीक है ना, तो आपको एक कॉन्स्टेंट ऑलवेज इसमें लेकर चलना है. और यदि आप डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है. उस केस में आपको कांस्टेंट कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप 2 टाइम्स इस टर्म को माइनस करोगे तो सी अनचेंज रहेगा, तो यहाँ सी प्लस आएगा और यहाँ सी माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाता है. तो अब कुछ फॉर्मूलाज की बात करते हैं जो आपको फिजिक्स में ज़रूरत पड़ने वाले. उन फॉर्मूलाज को हम यहाँ पर नोट करेंगे तो उन्हें आप याद रखिएगा, आगे काफ़ी हेल्प मिलेगी उन्हें उनसे प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपके जिस फॉर्मूले की बात होती है वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, आपका डी डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन. ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर वेरिएबल हमने एक्स कंसीडर किया है. यहाँ पर आपका टाइम हो सकता है, अनदर कोई भी वेरिएबल यहाँ पर आप ले सकते हैं. और इसके रेस्पेक्ट में यदि यहाँ पर कोई कांस्टेंट आता है तो आपको पता है कि कांस्टेंट में किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है तो ये जीरो होगा. तो हमने बताया था कि डिफरेंशिएशन चेंज को शो करता है, डिफरेंस को शो करता है. सेकंड फॉर्मूला आपका क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ आप एक्स की पावर एन, या यहाँ पर यदि कोई कांस्टेंट आ जाता है तो कांस्टेंट सपोज कर लीजिए कि है और यहाँ पर कोई फंक्शन एफ एक्स है, तो कांस्टेंट पर इस चेंज का वेरिएबल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट भी कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा. ठीक है, जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी से जुड़े उनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, वैसे भी इस बात को ध्यान रखिए कि इस वेरिएबल को चेंज करने पर किस पर इफेक्ट पड़ेगा वो इसके अंदर रहेगा, अदरवाइज जिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वो बाहर आ जाएगा. चलिए थर्ड जो केस है आपका वो आपका ये देखिए किस टाइप से है.
डी डी एक्स ऑफ इसका एक्स टू दी पावर एन का यदि आप इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो पावर शुरू में आ जाती है और एक पावर क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी। ये आपका फॉर्मूला है। फोर्थ इसमें जो आपकी कैटेगरी आती है काफ़ी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यदि आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन आपका कोस एक्स आता है। तो कुछ सेलेक्टेड पोर्शन से आप इन्हें याद करिएगा, इन्हीं की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कुछ आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सेकंड पार्ट में आप इंटीग्रेशन की जब बात करते हैं तो इंटीग्रेशन के केस में आप बात करेंगे। सपोज कर लीजिए कि आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यदि आपकी एक्स की पावर n है जिसका हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करना है, तो इसमें आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट होता है डिफ्रेंसिएशन का। आप चाहे तो इसके रूल पे अप्लाई कर सकते हैं, बट ये मैथमेटिक्स वालों को बताया जाता है, इसलिए अच्छा आप ये होगा कि याद कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या होगा कि एक पावर यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखिए यहाँ पर क्या क्या था, एक पावर क्या होगी, डिक्रीज हुई थी, ये जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर एक पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई में आई थी, यहाँ पर पावर कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। तो ये आपका यहाँ पर आता है n+1 सेम है। और आपको यहाँ पर कॉन्स्टेंट आगे से क्या करना है, ऐड करना है। एक सेकंड फॉर्मूला और यूज़ कर लेते हैं कि यदि यहाँ पर आपका 1 हो तो तब क्या होगा। तो 1 की कैटेगरी जरा देखिए। 1 का मीनिंग होता है कि x टू दी पावर 0 dx। तो आप देखिए 0 में आप एक ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया x+c। ठीक है ना। थर्ड फॉर्मूला आप देखिएगा जरा यहाँ पर, यदि हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको मिलता है माइनस के कोस एक्स और प्लस सी। तो ये तीन फॉर्मूले आप यहाँ पर याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और यहाँ पर आपके सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं जिनका यूज़ हम फिजिक्स में ऑलमोस्ट करेंगे, और ज़्यादा कोई हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपका मैथमेटिकल टूल था। कुछ मैथमेटिकल टूल्स मैंने आपको मेजरमेंट कंडीशन में आपको सॉल्व कराए, और कुछ मैथमेटिकल टूल्स आपने 10th लेवल पर भी अपनी जो आपकी बुक्स की मैथमेटिक्स उसमें स्टडी किए हैं। तो हम अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट आपका इसमें होगा उसे स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपकी डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड को स्टार्ट करेंगे, जिसे हम जो हमने भी डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन आपको कराया, ये आपका एक तरीके से कैलकुलस का ही पार्ट है। ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे आपके इक्वेशन और मोशंस का डेरिवेशन, जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो लगातार देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।